ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ। ਰੁਲਦੂ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਦਸਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ? ਜੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਉਂ? मतलब हादसा बहुत मंदभागी घटना वापरी है। तड़के 6 औरतां एक मर्द पंजाब नूं जा रहे थे, बैठे थे, व्हीकल ਡੀਕ रहे थे। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੈਂਟਰ ਤੇ ਆ ਵੀ ਹੌਲੀ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਤੇਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਹਜੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਰੱਖਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੜਤਾਲ ਤੇ ਲੱਗੋ ਪਤਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ 24 ਘੰਟੇ ਪੁਲਿਸ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁਲ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ ਉਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਪੁਲਿਸ ਕਿਉਂ ਹਟਾਈ ਗਈ ਜੋ ਘਟਨਾ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਤੋਂ? ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਲੱਗਦੀ, ਪੁਲਿਸ ਕਿਉਂ ਹਟਾਈ ਗਈ? ਪੁਲਿਸ ਘੰਟਾ ਬਾਅਦ ਆਈ ਆ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਪੜਤਾਲ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਫੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ, ਸਮਝ ਲਓ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਹੋਈ? ਉਹ ਪੱਕੀ ਉੱਥੇ ਪੱਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਸਾਰਾ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ? ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਗਰਾਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਾਡੀ, ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਗਰਾਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਰੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ? ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲਊਗੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਰਹੋ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। रमन मलिक जी साडे नाल जुड़ रहे हैं इस समय फोन लाइन के उत्ते हरियाणा बीजेपी तो। मलिक साहब, आपने पूरे हादसे के बारे में जाना होगा, बहुत ही दुखदाई हादसा है, किसी की मौत हो जाना बहुत दुखदाई है। किसान संगठन कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोई साजिश भी हो सकती है। आपको लगता है कि जांच करवाई जानी चाहिए? उस पुल के ऊपर, उस पुल के नीचे आमतौर पर पुलिस रहती है, एक ही दिन ऐसा आया जब पुलिस नहीं थी। गौरव, दो चीजें बोलूंगा। एक तो किसी की भी जान जानी, चाहे किसी के हाथ काट के जान जाए, लातें काट के जान जाए, किसी को जला के जान जाए, किसी की एक्सीडेंट में हत्या हो, सब दुखदाई है। लेकिन सिलेक्टिवली उसके लिए रोना, ये आपका कैरेक्टर को दिखाता है कि आप किसके लिए सिलेक्टिव होकर रो रहे हैं। दूसरी चीज, मेरे लिए अब ये एसकेएम के लोग क्या बोलते हैं इसका कोई मायना नहीं रहा, क्योंकि मेरे को ये लगता है कि जैसे ये लोग हैं, खासकर जिस प्रकार का वक्तव्य राकेश टिकैत ने अब इंडिया पाकिस्तान के मैच पे दे दिया, तो ये लगता है कि ये कुछ ना कुछ तो लेते हैं साहब, कि कुछ भी बोल देते हैं, जिसका कोई सर हो ना पैर हो, बस बक 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 कुछ ना कुछ बोल देना, झूठ बोलना। मतलब आपको क्या पता वहां क्या हुआ? आपने आज तक ये पूछा कि वो जो शांडिल्य पंडित जी थे, मुकेश जी, जो जिनके ऊपर पेट्रोल डाल के जलाया, आपने उनके लिए 2 लफ्ज बोले? नहीं बोले। उसी बॉर्डर पे जलाया था ना। मैं मलिक साहब पूरा फोकस अगर इसी मामले पर करूं, 3 लोगों की मौत हुई, आपको लगता है कि जांच होनी चाहिए या लगता है कि ठीक है भाई? मेरे वहां पे आसपास पुलिस, देखो कोई भी कत्ल होता है, एक्सीडेंट होता है, पुलिस उसकी जांच करती है, क्यों नहीं करेगी? ठीक है। जो आसपास के एरिया के सीसीटीवी कहीं लगे होंगे, कोई होगा, पुलिस उसकी बकायदा जांच करेगी जो न्याय संगत है। लेकिन मैं आज आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि हर चीज को बीजेपी पे डालना, तो इनका क्या ये एक नशा बन गया हुआ है? ठीक है, मैं जवाब ले लूँ ना इसके ऊपर। रुलदू सिंह मानसा जी साडे नाल ने। मानसा साहब, कुछ कहना चाहोगे? रुलदू जी, दरअसल वो कह रहे हैं कि हर ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੱਪੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਗੱਪ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੱਪੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਬਿਨਾਂ ਗੱਪ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਸਿੰਘੂ भाई साहब एक मिनट, मान साहब एक मिनट, अपने लफ्जों को जरा तोल के बोलना। आपको एक चीज का आगाह करा दूं, प्रधानमंत्री देश का होता है, हमारा सिर्फ नहीं है। नरेंद्र मोदी एक व्यक्ति जो है, उसके ऊपर आप टिप्पणी कर दो, चलता है, लेकिन देश का प्रधानमंत्री संवैधानिक होता है।
तो आप उसके ऊपर टिप्पणी जरा सोच समझ के करना। नहीं, आप ना एक नुक्शा दूसरे को बोलने नहीं देते। आपके पहले भी कई बार मेरे भाई आपका सत्कार करते हैं, इस बात को कोई बात नहीं, मैनू बोलने दो। मैं आपको सिर्फ ये बोल रहा हूँ, आप नरेंद्र मोदी जो व्यक्ति हैं उनके ऊपर टिप्पणी करिए ना। आप ये बोले इनका प्रधानमंत्री, आपका देश अलग है क्या? जो मर्जी कह लो, मैंने कोई बात नहीं, मेरी बात सुन लो, कोई ठंडी मत ना सुनो, बात सुनने का थोड़ा सा मार्जिन रखो। जो संगू साहब मेरे को आपको गले लगा के भी बात सुनने का मन है, बंद छोड़ लो। जो संगू बॉर्डर से घटना वापरी है, जो उस बंदे को कौन ले आया, सरकार पड़ताल ना करावे, को बाप आपके शहर में नहीं जा सकता। तो चन्नी को बोलो ना पड़ताल करावे, क्यों नहीं बोलते हो? सुन लो, चन्नी नहीं कराएगा, क्यों नहीं कराएगा? उसके हाथ में मेहंदी लगी है क्या? नहीं, सुन लो, चन्नी नहीं कराएगा। घटना कहाँ से क्यों नहीं कराएगा? नहीं, मेरी बात जब वहाँ से रिमोट कंट्रोल से चलते हो वहाँ से नहीं करे। अच्छा छोड़ो, उस गरीब के 3 बेटियां हैं, उस गरीब की 3 बेटियां, क्या आपने बोला पंजाब के मुख्यमंत्री को लखीमपुर जाके दिया था, उसको भी दे दो, लोगों को समझ आए बात। एक सेकंड मलिक जी, एक सेकंड रुकिए, उनको एक बार बात रखने दीजिए। रुलदू जी गल मेरी बात सुन लो, चन्नी करावे, खट्टर करावे, सेंटर करावे, उसकी पड़ताल होनी चाहिए। छोड़ लो बात मेरी। जो मतलब घट उसको ले आया कौन, उसके ने एक धर्म की बेअदबी करा दी, धर्म वाले लोग कैसे कराई बेअदबी, ये बताओ। सुन लो, धर्म वाले लोग मतलब भड़क गए। ना मेरी बात मैं ये नहीं मानूंगा। आप ये बताओ, आप बेअदबी की बात कर रहे हो ना, आप मेरे को सिर्फ इतनी बता दो उसने क्या बेअदबी करी थी कि मैं जवाब देता हूँ आपका। उसके बाद मेरी अभी आपका साथ कर दूंगा सारा झूठ। नहीं, बेअदबी करी उसने। मेरी बात तो सुन लो ना। जो उत्थे घटना वापरी, जिसने जिम्मेदार ली, वो निंग तोवर ना मीटिंग करके आंदा, उसको सरोपा पवाता है। मेरी बात सुन लो ना, मतलब उस बंदे को सरोपा पाना, वो बंदा जिम्मेदारी लेता है वो घटना की। असी संयुक्त मोर्चा ने दोनों गल्ला की, उसको नालों नाता तोड़ा, निखेधी करी है। मेरी बात सुन लो, हमारा बंद गए, मेरा ये 700 किसान हमारा शहीद हो गया। क्या सरकार हमारी मांगा ना मन नहीं? क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती? मेरी बात सुन लो। 700 कत्ल आपके सर पे है, हमारे सर पे नहीं, सरकार जिम्मेदार है। सरकार फिर मेरी सरकार एक भी मौत की जिम्मेदार नहीं है। ये संयुक्त किसान मोर्चा जो कि इसका ऑर्गेनाइजर है, वो इन कत्लों के हाथ में उसका खून है। नहीं, जो सरकार मंगा नहीं मान रही है, सरकार नहीं है साहब, सरकार नहीं है, सरकार जिम्मेदार है, सरकार नहीं है, सरकार जिम्मेदार। अरे है ही नहीं, आप जिम्मेदार हो। अब मैं बताता हूँ क्या हुआ है, अब मैं बताता हूँ साहब, सुनो। जो बेअदबी का आप कह रहे हो ना, मेरे को ये बताओ कि वहां पे गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के साथ बेअदबी सबसे बड़ी ये होती है कि अगर वहां सेवादार ना हो। गुरु ग्रंथ साहब जी के साथ सबसे बड़ी बेअदबी तब होती है जब आप उनकी स्थापना सड़क पे कर दो। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज को अकेला छोड़ना ही नहीं है होता, तो वो वहां पे पहुंचा कैसा, नंबर 1। नंबर 2, आपका सारा का सारा जो प्लेटफॉर्म है संयुक्त किसान मोर्चा का, स्टेज बिल्कुल साथ में है। जब वहां पे ये सब कुछ हो रहा था तो आप लोगों की स्टेज पे जो लड़ने वाले आपके लोग हैं वो कहाँ गायब थे? ये साफ दिखाता है कि ये करवाने वाले आप लोग लग रहे हैं। शक की जो सुई है वो आप पे जाती है। अब वापस आ जाए टीकरी बॉर्डर पे। मैं आपसे ये पूछता हूँ, ये ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि एक जो ये इंसिडेंट लखीमपुर का है उसको वैलिडेट करने के लिए बार बार आप इस प्रकार के काम करवा रहे हैं ताकि किसी और के ऊपर नाम लगे? शक की सुई आपके ऊपर क्यों न जाए? नहीं, सरकार की जिम्मेदारी होती है ना। नहीं, सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। सरकार ने नहीं आपको बिठाया, नहीं सरकार ने आपको नहीं बिठाया साहब। ना वो खड़ी नेता जी सुनो, सरकार ने 3 कानून लिया, सरकार ने आपको बोला आके बैठो, सरकार ने 3 कानून लिया, सरकार ने आपको बोला आके बैठो। कहा बोलो सतो, जदों बैठिए बोलो, कहा भाई सरकार ने आपको बोला कि आप जाके दिल्ली के बॉर्डरों पे बैठो। नहीं, 3 कानून लिया हमारा सारा, हमारी आपको 3 कानून की बात करनी है, आप कोर्ट में जाइए, कोर्ट का विषय है, आपका अब विषय नहीं है। क्या
सुप्रीम कोर्ट का विषय है अब। चलो आपके 43 लोगों को बुलाया ठीक है था, मलिक सिर्फ साहब, 2 रुलदू गए जी थे। मैं ਵਾਪਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਆਵਾਂ। ਦੇਖੋ ਟਿੱਕਰੀ ਤੇ ਜੋ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਰੁਲਦੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੰਘੂ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਟਿੱਕਰੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਸੁਣ ਲਓ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਰੋਜ਼ ਖੜਦੇ ਆ, ਰੋਜ਼ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਗਾਉਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖੜਨਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ? ਸਮਝ ਗਏ ਵੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜਵਾਬ ਦੂੰਗਾ ਅੱਡਾ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਆ ਕਰਿਆ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ? ਜੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦੀਆਂ, ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਧੀਆ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ। ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵਾਪਰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਤਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, 100 ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚ ਜਦੋਂ ਵਿਗੜਿਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀ ਬਣੂਗੀ? ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਹੇ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਆਪ ਚ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਡੋਡੀ ਲੈਣਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਟਕਰਾਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੜਬੜਾ। ठीक है, जवाब ले लिए, जवाब ले लिया। रमन जी, तुसी कुछ कहना चाह रहे थे? रमन जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले तो किसी ने इनको आके बैठने का न्योता नहीं दिया था, ये खुद आके बैठे। दूसरी चीज, जो भी इवेंट का ऑर्गेनाइजर होता है, जान माल की नुकसान उसकी जिम्मेवारी होती है। मेरा तो बार बार सरकार से भी और एजेंसियों से भी कहना ये है कि जितने ये क्लेम कर रहे हैं 700, 800, कभी 1000, इन सब का लेना देना, इन सब की जिम्मेवारी संयुक्त किसान मोर्चा की है। दे शुड बी मेड कल्पेबल फॉर होमोसाइड। तीसरी चीज जो सबसे बड़ी है, ये जो प्रॉब्लम हुई, जो आज ये दुर्घटना हुई, इसका शोक है मेरे को, लेकिन मैं ये समझना चाहता हूं कि जो ये बार बार हर चीज का इल्जाम सरकार के ऊपर चढ़ा देते हैं, तो मैं ये समझना चाहूंगा कि क्या इनके पास कोई इस प्रकार का तथ्य है जो ये कहता है कि सरकार ने ये ट्रक भेजा होगा, सरकार ने ट्रक चढ़वा दिया हो। ये हर चीज का करते हैं। और मैं स्पष्ट रूप से आज पूछता हूँ आपसे भी कि क्या आपको इनके मानसिक संतुलन के ऊपर शक नहीं आता जब ये बोलते हैं कि हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने मैच को हरवा दिया? मतलब ये क्या तरीके हैं इनके? नहीं मलिक साहब, जो किसान संगठन बनाते हैं, रुलदू जी की जो बात है ना, मैं इस चर्चा को वाइंड अप करूंगा, लेकिन एक चीज, जब रोज नाका पुलिस का लगा हो, पुलिस वाले वहां पर मौजूद हों और एक दिन ना हो और उसी दिन हादसा हो जाए, 3 लोगों की मौत हो जाए, तो आपको लगता है कि देयर इज अ क्वेश्चन मार्क? नहीं, क्वेश्चन मार्क बिल्कुल दोनों तरफ आएगा सर। गौरव जी, क्वेश्चन मार्क दोनों तरफ आएगा। अगर सरकार की तरफ क्वेश्चन मार्क आएगा तो संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ भी आएगा, क्योंकि जब इनका एजेंडा फेल हो रहा है, नैरेटिव दब रहा है, तो उसको हाइप करने के लिए ये क्यों नहीं कर सकते? अगर डेविल्स एडवोकेट बनना है और थ्योरी चलानी है तो दोनों तरफ चलेगी ना सर। ठीक है, एक तरफ तो नहीं चलेगी। चलो तो आप इनका भी दिखा। बिल्कुल बिल्कुल, जवाब दे दो, चर्चा में थी समाप्त। मैं देना जवाब जी जी। जो यूपी ਦੇ ਵਿੱਚ लखीमपुर ਗੱਡੀ किसने चढ़ाई, वो सरकार के बंदे का, सरकार के गृह मंत्री का काम नहीं है। अच्छा भाई वो सरकार का कैसे है बता दो। वो सरकारी मुलाजिम है, बोलने दीजिए, वो सरकारी मुलाजिम है, सरकारी पदाधिकारी है। आप सरकार पे मत जाओ सीधे। आप ये बताओ, आप ये बोलो कि मिश्रा जी का ड्राइवर बिल्कुल चलता है। नहीं, सुन लो जो करनाल में थोड़ा एसडीएम हुक्म दे रहा है किसानों के मत्थे फोड़ दो, वो क्या बात है? कदे हमारे मुंह से बात सुनी है? किसी को बिल्कुल सुनी है। किसकी बोलो, कहो हमारे 32 लीडर दिखाओ, उसको मोर्चे दिखाओ। मैं अपने आप भुक्तभोगी हूँ साहब। मैं संयुक्त किसान मोर्चा के ये जो बॉर्डर पे, सिंगू बॉर्डर पे लगाया हुआ है, मैं और मेरा परिवार जा रहा था। आपके समर्थक ट्रक में थे, मेरे पास कहीं ना कहीं वीडियो होगा। मर जाए मोदी, मर जाए बीजेपी, मर जा तू, इस तरीके की बात मेरे को करने की क्या जरूरत है? नहीं, जिसकी मेरी मौत और मेरे बच्चों की मौत मांगने वाले तुमको। नहीं,
बात सुन लो, जो जिसकी सरकार है उसके खिलाफ नारे तो लगेंगे। अरे नारे का मतलब मेरी मौत मांगोगे? नहीं नहीं, नारे लगेंगे। नहीं, नारे का मतलब मेरी मौत मांगोगे? नहीं नहीं, आप इतना गुस्सा आप मत करो। पहले ये बताओ, अगर मेरी रुल्दू साहब मेरी बात बताओ, अगर मेरे को आपसे आपके किसी काम से परेशानी है तो मैं आपके काम की भत्सना करूंगा ना। आप मेरे परिवार की मौत मांगो या मैं आपके परिवार की मौत मांगू, वो क्या आपका व्यक्तित्व नहीं दिखाता? नेताजी मेरी बात सुन लो, जो आपकी सरकार, नेताजी को जान से तेल लेने। आप तो पहले ये बताओ, आप पहले मेरे को ये बताओ, किसी की मौत मांगनी ये इंसान का काम है या जानवर का काम है? नहीं नहीं, नारे लगाना हमारा फर्ज बनता। नारे में आप किसी की मौत मांगोगे? तालिबान हो? नहीं नहीं, मैं कोले भी नहीं दिखा आपके खिलाफ। को वहां को वीडियो दिखा दो जो कैसे नारे लगाए होंगे। अरे मैं दिखा देता हूँ, मेरी वाइफ ने वीडियो बनाया था। नहीं नहीं, मैं दिखा देता हूँ, ट्रक में बैठे हुए बच्चे आपके समर्थक संयुक्त किसान मोर्चा के। नहीं, एक बात है, मैं पहले तो आप ट्रक में नहीं चढ़ते होंगे, चंगी कार में बैठे होंगे। अरे मैं गाड़ी में था, आपके समर्थक ट्रक में थे। अच्छा 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 अच्छा, हमारे ठीक है। वहां कहते आप ट्रक में थी, मैंने ऐसे लगे। नहीं साहब, मैं अभी ट्रक में नहीं गया। बिल्कुल, मैं पहले ट्रक में जरूर बहुत बैठा हुआ हूँ, बहुत चलाया भी हुआ है। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਰੁਲਦੂ ਮਾਨਸਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਸਿੰਘੂ ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਤਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਹਾਦਸਾ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਪੱਖਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਖਦਸ਼ਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 2 ਪੁਆਇੰਟ ਬੋਲੇ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਿ ਉਸ ਪੁਲ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਤੱਖਦਰਸ਼ੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 6 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਦ ਸੀ, ਇਹ 7 ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਫੱਟੜ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੱਕ ਬਹੁਤੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਟਰੱਕ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਕੇ ਚੜ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਗਰਾਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉਗਰਾਹਾਂ ਕਹੇਗੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ।